water did not exist more than a few years ago. It was wasted. Now this mass of water has been tamed by man. The old order must change rapidly. Traditional methods must give way to superior technology. Man must harness nature in order to create a better life for himself. The Nagarjuna Sagar Dam is the new temple of modern India. And the song of this temple is echoing all over the country. सरदार सरोवर परियोजना भारत के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना 4 राज्य अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का मिला जुला प्रयास है। बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। Domkhedi village, Maharashtra, 1994. By the time you see these images, this village may no longer exist. Every year, Adivasis from neighboring villages gather at Domkhedi to celebrate the harvest festival of Holi. The word Adivasi literally means the original inhabitants. This may be the last Holi held here. When the Sardar Sarovar Dam reaches a height of 80.3 meters, Domkhedi will drown. The controversial Sardar Sarovar Dam, kingpin of a gigantic Narmada Valley development project, will cost 130 billion rupees by official and 400 billion by unofficial estimates. The dam's reservoir alone will drown 37,000 hectares of land and displace 200,000 people, its canal and related systems displacing an even greater number. Since 1985, opposition to the dam has grown in the form of the Narmada Bachao Andolan, the Save Narmada movement. From December 1990, we began to keep a video record of the movement. Ferkuva, Gujarat border, December 1990. In a gesture of non-violence, Baba Amte, veteran Gandhian, ties the hands of anti-dam protesters as they march towards the dam.
उनको भाई अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ रही है। ये तो एक प्राकृतिक घटना है। अरे लड़की ससुराल जाती है तो रोती है, माँ बाप सब रोने लगते हैं, ये प्राकृतिक है, लेकिन जानते हैं कि जाना तो है ही। तो ये एक प्राकृतिक घटना है। वो जब जाके बस जाएंगे तो उधर बस जाएंगे, फिर उधर से छोड़ना पड़ेगा, तब उधर भी रोने लगेंगे। ये बैठ जाने के बाद ये होता रहता है। Only thing is that they have to leave their place where they born. But in country, if we want to develop, one has to do. Either you are in Bombay, you may not belong to Bombay. I'm in Baroda, I'm not belonging to Baroda. I born in rural part of the country, in Baroda district. And I came to here. So naturally, if you want to develop, one has to leave the place. Here, by compulsion they have to go. While for us, for development we are going. And this compulsion is for their development. And this compulsion is for their sacrifice toward the nation. By love of the land is there, but one cannot be emotional. This big dam is going to take place. So naturally, if I build a house, I have to remove tree. And if you consider in this way, I will give you, you will not going to build up the roads. You are not going to build up the railways. One has to take the land for that. Progress cannot be possible. बांधे 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 रे बांधन वालों बंदारो बांधे 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 रे बांधन वालों बंदारो बांधे 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 रे बांधन वालों बंदारो जंगल के ती डूबाड़े बांधन वालों बंदारो जंगल के ती डूबाड़े बांधन वालों बंदारो जंगल के ती डूबाड़े बांधन पचासी में मैं आई, महाराष्ट्र के गांव से शुरुआत की। तब तो यहाँ से केवड़िया कॉलोनी से तो हम सिर्फ गुजरते थे और गुजरात के गांव होकर फिर नदी पार महाराष्ट्र के गांव में जाना होता था। तो 85 से 87 तक तो पूरी ये महाराष्ट्र के गांव-गांव की और हैमलेट्स जो फलिया कहलाते हैं, फलिया की मीटिंग्स और संगठन करते करते पूरे महाराष्ट्र के 33 गाँवों का जो डूब क्षेत्र के हैं उनका एक संगठन बना, नर्मदा धरणग्रस्त समिति। उस समय तो जब गांव-गांव जाते थे तो स्वाभाविक था लोगों के अलग अलग अनुभव थे बाहर से आने वाले लोगों के बारे में। एक तो वो जानते थे फॉरेस्ट गार्ड और तलाठी पटवारियों को, जो कि वहाँ केवल 2-3 बरस में एक आध बार आते थे और इसलिए आते थे कि वो लोगों से ज़्यादा वसूली करे। कई जगह ऐसा भी होता था कि बहुत समय तक घंटों तक चल के गाँव में पहुँचे तो कोई रोटी देने के लिए खास इच्छुक नहीं, फिर वैसे ही चल पड़ते थे। या सुबह की चाय सब जगह बनती ही नहीं थी आदिवासी क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद फिर जैसा कि बढ़ता गया लोगों का साथ सहकार, वैसे तो फिर आदिवासी कुछ भी करने के लिए तैयार। कभी बहुत बड़ी बाढ़ नर्मदा में आते हुए भी अपनी डूंगी एक लकड़े की नाव डालकर हमको नदी पार करवा देना, या रात भर हमारे साथ चलना, कहीं भी ले जाना, कुछ भी घर में बताना, कहीं भी सुलाना, ये बात सब। तो अभी ये कुल मिलकर हमारी एक 250 गाँव का संगठन कह सकते हैं। 88 तक सरकार के साथ मांगों पर बातचीत हुई। पहली मांग ये थी कि इस पूरी योजना के लाभ हानि के हिसाब और अध्ययनों के साथ पूरी जानकारी गांव-गांव में आकर विस्थापितों को दी जाए, उनका जानकारी का अधिकार मंजूर किया जाए।
जैसे कि लाभ किसका होगा और हानि किसकी होगी, या लाभ कितना होगा सचमुच और हानि भी सचमुच कितनी होगी और उसकी सरकार भरपाई कर पाएगी क्या। तो ये जवाब अगर संतुष्ट करे हमें तो ही हम उजड़ने की बात न्याय मानेंगे और सोचेंगे। हम चौथा महीना में आए इधर, फिर अभी 2-3 महीने हो गया, तो हमको किसी को पता नहीं था कि इधर पानी आता है सर। तो बरसात गिरा और डैम का भी, उधर ऊपर एक डैम है, उधर का भी पानी आया। तो सवेरे 15 तारीख को 6:30 बजे इधर पानी पूरा भर गया। फिर हम डबोई गए कहने के लिए, वायरलेस करने के लिए, और बारिया पर आकर लोग आए, वो सब आके सबको निकाल गया। तो सकरजा के भाइयों, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सरकार आपके साथ में है और हारेश्वर में नया सकरजा अपने को बनाना है। गुजरात में हारेश्वर की जगह तो बहुत अच्छी है ना। और देखो आप सब में एकता रहेगी, एकजुट रहोगे तो वहाँ पे भी सकरजा बना सकते हो, नया सकरजा बना सकते हो। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, वहाँ बहुत बढ़िया जमीन है। बहुत मक्का तुअर निकली वहाँ, तो कपास भी बहुत निकली। मेरे को ये बात बताओ चंद्रिया दादा, यहाँ से सकरजा से छोड़ के जा रहे तो बुरा तो नहीं लगा? ना। उनको तो डूब का डर दिखाकर अब डूब आएगी इसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा ये कहकर पुनर्वास की जो चीजें उनको